Hello and welcome again to the Prospective series. I'm your host Filza Jabin और आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह सर. Welcome sir. Let me introduce you all to Surinder sir. Surinder Singh is a seasoned special educator, disability inclusion advocate, and trainer with over a decade experience in intellectual and developmental disabilities, inclusive education, and supported employment. Currently serving as the head of department special educational need at the Lalit Suri Hospitality School. He's also pursuing his PhD in the disability sector. As a certified master trainer with the skills counseling for persons with disabilities, Surinder Singh has worked with leading organizations including Special Olympics Bharat, Akshaya Pratishthan School, and Muskan NGO. Surinder Singh is also passionate about inclusive employment. He has successfully facilitated mainstream job opportunities for more than 90 neurodivergent and intellectual and developmental disabilities individuals across Delhi NCR since 2011. Amazing job, sir. My heart is really full with the introduction itself. I warmly welcome you to my platform, the Prospective series. Tell us Thank you. more Thank you about very you, sir. much. Uh, okay. So thank you. Already you cover each and everything, but few more things I would like to highlight with our audience. So last 24 years से like it's kind of for me a dream come true कि जब हमारे neurodivergent folk और intellectual developmental disabled हमारे friends के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस तरह की प्रोवाइड हुई जहाँ पर लाइक एज ए पेरेंट्स एज ए प्रोफेशनल्स हम लोगों के लिए हमेशा ये रहता था कि after a certain time once they complete their age of 16 17 or 18 what next, okay, once they complete their schooling what next, once they entered in their adulthood what next. And honestly that time if I am talking आज से कोई 15 या 20 साल पहले का इस तरह का अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग देयर फर्दर ट्रेनिंग वोकेशनल प्रोग्राम या एम्प्लॉयमेंट इज वेरी सो यस जब ये अपॉर्चुनिटीज मिली तो वहां से इसको जिसे कहते हैं ना कि मेरे लिए तो ये ऐसा था कि इस चीज को बस आपको ग्रैब कर लेना है एंड वहां से एज ए रिहैब प्रोफेशनल एक जर्नी मेरी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई जहां से एवरी डे आई एम लर्निंग ए न्यू थिंग्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स सो मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि इफ आई एम यूजिंग फ्रेंड वर्ड तो वो डायरेक्टली हमारे पीपल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज और न्यूरो डाइवर्जेंट मेरे दोस्तों की तरफ जाता है बिकॉज आई डोंट कॉल देम special people, special child, yeah, special students. They are my friends. Because in my 24-year journey, every day I learn a lot from them. I because वही है जो आज मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आया है कि I can share my journey, my experience with you guys. And yes, apart from all these things, across India, I am trying to guide or facilitate other NGOs, educators, and parents how they can build their students and their ward path in particular areas. Apart from this, uh, from 2019 onwards, along with other my team, we help them other countries also to build up or to create a proper structure regarding training, vocational or employment in their countries also. So that's it. Yeah. अच्छा. नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने भी ये नोटिस किया है कि हमारा स्कूल सिस्टम या फिर थेरेपीज एंड ऑल सारी चीजें अवेलेबल हैं टिल द एज ऑफ 18. फिर भी बहुत सारे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे बच्चों के लिए, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए. बट व्हाट आफ्टर अस? व्हाट इफ हमारे बाद वो उस हार्डशिप को नहीं झेल पाए और दुनिया क्योंकि इस चीज के लिए तैयार नहीं है, सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से इट्स नॉट रेडी फॉर इट. तो क्या आप बता सकते हैं सर कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट मॉडल अवेलेबल है न्यूरो डाइवर्जेंट
लोगों के लिए, किड्स के लिए, ताकि पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस हो? सो थैंक्स टू माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां मैंने काम किया एंड जहां उन्होंने उस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी कि जहां से हम अपने फ्रेंड्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मॉडल हम या स्ट्रक्चर उस तरह का तैयार कर सकते। बिकॉज बड़ा सिंपल सा लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग आप हो या मैं हूँ, वंस वी कंप्लीट ओवर स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि हमें जॉब करना है या कोई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। सो इस एरिया में मतलब अगर मैं कहूँ तो इन अक्रॉस इंडिया हार्डली मैक्सिमम 10 to 15% ऑर्गेनाइजेशंस ही होंगी जो प्रॉपर एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या उस तरह के अपॉर्चुनिटीज के ऊपर या उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर काम कर। सो ओवर द पीरियड जो मैंने सीखा या जिन चीजों को मैंने डेवलप किया अलोंग विद मेरे अदर टीम मेंबर्स के साथ मिलके या जो मेरे सीनियर्स या मेंटोर थे जिन्होंने गाइड किया, सो हमने बेसिकली अपने तीन तरह के एम्प्लॉयमेंट या चार तरह के एम्प्लॉयमेंट मॉडल हमने क्रिएट करे। नंबर वन आपका सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट विद इन योर सेटअप। इट्स मीन कि वो मेरे दोस्त जो वर्क तो कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं, बट फॉर देम इट्स क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट कि मैनेजिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लाइक आप और मैं अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां हम मिनिमम 8 आवर्स वर्क करते हैं, 5 डेज या 6 डेज होता है। सो हमारे कुछ कहते हैं ना फ्रेंड्स के लिए डिफिकल्ट है कि वो 5 डेज या 6 डेज एंड 8 to 9 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क करना मे बी फॉर देम इट्स नॉट ए फिजिबल। सो उनके लिए हमने हमारे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपका एनजीओ है या स्कूल्स है, उसी के अंदर आपने उस तरह के वोकेशनल वर्क जनरेट करे जहां वो वर्क करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ एजुकेटर रिहैब प्रोफेशनल्स, जहां वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे एंड वी कैन सेल देम। और वो सेल होगा तो उसका वट एवर अमाउंट आएगा वो आपके काइंड ऑफ स्टाइपेंड या आपका एक शॉर्ट काइंड ऑफ पॉकेट मनी की तरह आपके पास जाएगा। सो दैट कि आप नॉट ओनली मीनिंगफुल बट आप एक प्राइड के साथ अपनी लाइवलीहुड को एंजॉय करें। बिकॉज देन यू कैन प्राउडली से कि यस मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ, राइट। देन द सेकंड मॉडल इज मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट, जहां हमारे वो दोस्त जो मैनेज कर सकते हैं उन लॉन्ग वर्किंग आवर्स को और उस तरह के बिजी बशले शेड्यूल को अलोंग विद अदर देयर टीम मेंबर्स जो न्यूरोटिपिकल है, राइट। सो उनके साथ वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स को मैनेज करते हुए डे टू डे लाइफ में सेम टास्क सेम थिंग्स इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने रखा अपना मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट जहां वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ compete करेंगे एवरी डे में। सो जो हमारा पहले वाला मॉडल था सपोर्टेड वर्क सेंटर्ड या सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे मेजर नंबर ऑफ फ्रेंड्स प्लेस होते हैं। सो ओके। आप कह सकते हैं कि अराउंड 60 to 70% हमारे दोस्तों के लिए आज भी वो वाला मॉडल सबसे बेस्ट है। जो नेक्स्ट मॉडल है मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट जो हम सबका ड्रीम है और जिसके ऊपर मैं पिछले 16-17 ईयर से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ टिल डेट, अगर मैं उसको एक परसेंटेज में कहूँ तो हमारे 25 to 30% फ्रेंड्स ही वहां मैनेज कर पा रहे हैं। बिकॉज लॉट्स ऑफ चैलेंज लॉट्स ऑफ आप कह सकते हैं टास्क या लॉट्स ऑफ उस तरह की थिंग्स हैं जो मैनेज करना है, राइट। एंड आई नो कि जिस तरह से अब एक अवेयरनेस जिस तरह से अब चीजें चेंज हो रही है तो आने वाले टाइम में आई थिंक 50-50 हो जाएगा कि 50% हमारे फ्रेंड्स इजीली मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, 50% के लिए स्टिल सपोर्टेड वर्क सेंटर की रिक्वायरमेंट हो क्योंकि वो बैकबोन है काइंड ऑफ। देन थर्ड आप कह सकते हैं मॉडल इज सपोर्टेड वर्क सेंटर या सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट फॉर हाई सपोर्ट नीडेड पीपल। ओके, बिकॉज ज्यादातर सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड कर यस रहा है ये। बिकॉज ज्यादातर हम लोग जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सो कॉल्ड जो हम आईक्यू या उस चीज के ऊपर लेके फंसी हो जाते हैं कि ठीक है जी इस लेवल तक का आपका स्ट्रेंथ है तो आप वर्क कर सकते हैं, इस तरह की एबिलिटी है तो आप बाहर जा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट जो हमारे हाई सपोर्ट नीड पीपल हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको भी तो सेम ड्रीम उनके भी है, दे ऑल्सो वांट टू अर्न समथिंग। मे बी वो शायद आपको उस तरह से एक्सप्रेस ना करे बट एज अप्रोप्रिएट जब हम डीलिंग की बात करते हैं तो उनको भी हमें एम्प्लॉयमेंट मॉडल देना होगा। डेफिनेटली आपको वो विद इन योर एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करना पड़ेगा
लेकिन वहां पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स की आप रादर देन 3-4 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क में इन्वॉल्व होंगे, मे बी शायद आपके लिए हाफ हाफ आवर या 1-1 आवर का रहेगा एंड बीच में आपके लिए ब्रेक होगा, सो दैट कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टास्क को स्मूथली या उस प्रोडक्ट को स्मूथली कंप्लीट कर सकें। एंड यस, ये सक्सेसफुल मॉडल हमने बनाए हैं और वो स्मूथली चल रही है। देन लास्ट जो मॉडल है वो है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या आप कह सकते हैं कि मेरा ओन बिजनेस। ओके, बिकॉज कुछ पेरेंट्स का रहता है कि ठीक है हम कुछ स्किल्स ट्रेनिंग करवा के अपने वार्ड को और उसके लिए कुछ उसका बिजनेस ओपन करवा देंगे। स्मॉल बेकरी शॉप हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, या कोई आपका इस तरह का फोटो स्टेट, या इस तरह के छोटे छोटे कुछ हम सोच सकते हैं। बट अगेन मैं इस एरिया में अपने आप को डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ करवाना चाहूंगा इन फ्यूचर, राइट। क्योंकि अभी तक जो थोड़ा है, जो हमारे फोर्थ मॉडल है जहां आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो अभी तक मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग कि मैंने उतना सक्सेस अभी नहीं देख पाया। होता क्या है कि सपोज मेरे किसी दोस्त ने अपना एक फॉर एग्जाम्पल छोटा कॉफी शॉप ही खोला है, जहां पर वो सिर्फ 2 या 3 आइटम ही दे रहा है कि आपका कॉफी मशीन है, कॉफी देना है आपको, टी देना है या लेमनेड देना है, अलोंग विद मे बी एक सैंडविच है, दैट्स इट। सो मेरा दोस्त है एंड दोस्त के साथ एक टीम मेंबर है, ओके, XYZ, जो पेरेंट्स ने, या तो पेरेंट्स में से कोई है, मदर फादर में से, या उन्होंने किसी को हायर किया और उसके साथ सपोर्ट सिस्टम में लगा। इनिशियली फ्यू डेज वो चीज बहुत स्मूथली चल रही है, लेकिन वंस जैसे ही आपके पास डिमांड हाई होती है, आपके पास क्लाइंट बैक टू बैक आने शुरू होते हैं, एंड वहां पर जब एट ए टाइम आपको मल्टीपल ऑर्डर्स लेने हैं, वो नहीं हो पाता। तो मे बी और मे नॉट बी मेरे दोस्त के लिए क्वाइट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अगेन प्रॉब्लम क्या है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले चीज को अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं सबसे लास्ट एंट्री करी है मैंने, तो मैं कहूंगा भैया आधा घंटा हो गया मुझे खड़े हुए, आप कितना वेट करवाओगे, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में होके जो हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ काम में कर रहा है, जो हमारे साथ हमें हेल्प करने के लिए, चाहे मदर है, फादर है या पर्सन है, वो जंप करता है। ओके। बिकॉज उसे इतने पीपल हैंडल करने, सो दैट कि कोई भी मेरा कस्टमर खाली हाथ ना जाए। एंड वंस एक बार जब वो एंटर करता है, तो कहीं ना कहीं मेरा दोस्त एक स्टेप अपने आप को बैक ले लेता है। एंड जब वो एक हाँ। बार बैक लेता है कि यस आई एम द ओनर और ये बाकी करेगा, तो वहां से चीजें थोड़ा सा गड़बड़। बट यस, जो एक मैंने एक तो अभी देखे चीजें जहां पर रियली मतलब पेरेंट्स ने उस तरह से अपना थॉट्स, उस तरह से आइडियाज डाला, और वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन के, और वहां पर उन्होंने अपने वार्ड के साथ साथ बाकी अदर IDD और न्यूरो डाइवर्जेंट फोक्स को भी एम्प्लॉयमेंट दिया। बॉम्बे में एक रेस्टोरेंट है, अदिति कॉर्नर, अदिति कॉर्नर या अदिति फूड स्टॉल करके कुछ ऐसा है। स्टार्ट जब उन पेरेंट्स ने किया था अलोंग विद देयर डाउन सिंड्रोम गर्ल चाइल्ड, तो इनिशियली दे आल्सो फेस द सेम चैलेंजेस, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एंड जिस तरह से एक अवेयरनेस और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर को बिल्डअप करा, हेड्स ऑफ पर्टिकुलर पेरेंट्स की, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले मॉडल को सक्सेस किया है। बट स्टिल अभी उस पर और वर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एक अकेले अदिति इतना नहीं चीजों को कर सकते। सो अदिति अदिति के पेरेंट्स की तरह हमारे एक बंच ऑफ पेरेंट्स एंड मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट है कि वो हर सिटी, हर स्टेट, हर कॉर्नर में एक इस तरह का मॉडल तैयार हो, जहां पर नॉट ओनली वो पर्टिकुलर पर्सन बट उसके और भी दोस्त वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर। सो ये 4 बेसिक मॉडल है जहां पर हम हमारे हर एबिलिटी के, हर एबिलिटी उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि एक स्किल ही ऐसी चीज है और ट्रेनिंग, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन स्किल, एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे लेके जा सके, और जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रही है उसको आगे
बढ़ा सकें। और इसके लिए जो सराउंडिंग पीपल है, लाइक हम लोग हो गए, सोसाइटी पीपल, उनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्पेशली पेरेंट्स की। तो एग्री। यहाँ पर मैंने बहुत कंफ्यूजन देखा है पेरेंट्स के अंदर कि कौन सा करियर चूज करें, कैसे वो ये डिसाइड करें कि मेरे बच्चे के लिए इन चार मॉडल में कौन सा बेस्ट है, और मुझे किसके लिए आगे जाना चाहिए। सी बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है फैजल जी। होता क्या है कि एज ए पेरेंट्स मैं भी चाहूंगा कि मेरा बच्चा डेफिनेटली मेरे ड्रीम को फुलफिल करे। सो मैं चाहूंगा कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या वो एटलीस्ट उस पोजीशन पे हो जहां पर फाइनेंशियली उसको सोचना। हम्म। राइट। पेरेंट्स से ज्यादा जो चीज समझने की और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है सबसे पहले हमारे रिहैब प्रोफेशनल यानी स्पेशल एजुकेटर ओके। एंड जो कैरियर काउंसलर्स हैं हम्म। हमारे सेक्टर। बिकॉज एक पेरेंट्स को वो गाइडेंस प्रोवाइड करना ही कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बिकॉज एक पेरेंट सबसे पहले हमसे गाइडेंस लेना चाहता है, जिस भी क्लास में जिस भी टीचर के अंडर उनका वार्ड अपना ट्रेनिंग कर रहा है या स्टडी कर। सो अगर एज ए एजुकेटर हमें ही उस तरह की इंफॉर्मेशन या गाइडेंस नहीं है कि किस तरह की डिमांड है। ओके। ऑल फोर जो एम्प्लॉयमेंट मैंने मॉडल बताए उनके चारों के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है, डिफरेंट आपके कहते हैं ना डिमांड्स है। ओके। एज ए एजुकेटर अगर मुझे नहीं पता कि किस एम्प्लॉयमेंट मॉडल में क्या डिमांड है और मेरा जो दोस्त है वो किस एबिलिटी के साथ आ रहा है, एक्चुअली मैं अगेन मैं कहूंगा, शायद ये वर्ड मैं बार बार यूज करता रहूंगा कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मोर देन 90% एजुकेटर्स जो बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं आईक्यू के ऊपर। हम्म। राइट। बिकॉज हमने अपनी स्टडी में पढ़ाई हुआ है, हमने हमारी स्टडी में आईक्यू के बेस पे ही उनका पूरा प्लान बनाया है। ओके, जिसे आईपी कह देते हैं। उनके आईक्यू के बेस पे ही हम उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ भाग जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये चैलेंजेस तो आएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है या मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस जहां मैंने काम किया है उनके साथ रह के मैंने ये सीखा है कि आईक्यू जस्ट ए नंबर फॉर गेटिंग ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और मे बी आईक्यू आपको हेल्प कर सकता है इनिशियली आपके ट्रेनिंग, जब आप एज ए टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो, बिकॉज उस टाइम पे बेसिक समझना जरूरी है। राइट। लेकिन जब आपने एक बार वो चीज कवर कर लिया तब आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कह देते हैं कि एक 50% आईक्यू का स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड नंबर करेगा, एक्स वाई जेड नंबर नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी साइंटिफिक लिखा हुआ है, बिकॉज हमारी बुक्स में लिखा है। लेकिन अगर मैंने मेरे उस दोस्त को एनवायरमेंटल एक्सपोजर नहीं दिया या उसको उस तरह के एक्सपोजर या अपॉर्चुनिटीज ही नहीं प्रोवाइड करी तो वो कैसे सीख सकता। बिल्कुल। सो मैं ऑडियंस को इसको और क्लियर करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन हमारे कंट्री के एक उस विलेज से आया सिटी में जहां उस विलेज में अभी तक लाइटिंग का भी इश्यू है। ओके। कोई सड़क नहीं है, एजुकेशन नाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। जिन्होंने देखा नहीं, जो सिर्फ अपने एक डेली लिविंग को जी रहे थे, खेती करी सब कुछ है। इंटरनेट क्या होता है, स्मार्टफोन क्या होता है, अभी उससे दूर। हम वहां से एक यंग पीपल को अपने सिटी में लेके आ गए और लाते के साथ ही उसको हमने कंप्यूटर के पास बिठा दिया। ओके, मैं आपको 50,000 बक्स दूंगा, आप इस लैपटॉप पे काम करना शुरू कीजिए। नॉट क्या ये मेरे उस दोस्त के लिए पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल सर। तो अब मैं क्या करूं कि उस पर्सन का, बिकॉज वो अपने वहां पर तो बहुत बढ़िया खेती करता था, पूरे घर के घर बना देता था, लेकिन यहाँ आके तो उसका आईक्यू कहाँ गया? तो अब मैं उसके आईक्यू के हिसाब से क्या उसको भी लेबल्ड कर दूं कि पर्सन कम अंडर आईडीडी और मे बी एसएलडी और मे बी एएसडी। परफेक्ट पॉइंट रेज्ड सर। इसी तरह से हम छटाई कर देते हैं, और मुझे राइट। दुख है कि हम खुद एज अ पेरेंट्स हम छटाई कर देते हैं अपने बच्चों की, और उसको ट्रेनिंग की तरफ नहीं लेके जाते सो हैं। अगेन मैं पेरेंट्स को इसमें ब्लेम ही नहीं करूंगा। एक टाइम था जब तक मैं आई एम रियली मैरिड नहीं ग्रेटफुल फॉर दिस। आई एम नॉट, जब मैं मैरिड नहीं था तो उस समय पे मैं भी करता था। बिकॉज दैट टाइम आई एम नॉट कम टू नो कि यार एक पेरेंट्स फ्रॉम द डे वन और एंटायर उनकी जर्नी में वो कितना एफर्ट डालते हैं अपने वार्ड के लिए। राइट।
अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एज ए पेरेंट्स, मेरे घर में एक न्यू बेबी आया, आते के साथ ही सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? डॉक्टर, राइट? अब एक डॉक्टर ने आके सबसे पहले कहा, मिस्टर एंड मिसेस, आपका बच्चा स्पेशल है, वो डाउन सिंड्रोम है या वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। एंड आपको पता है, आपके बच्चे को आपको पूरी जिंदगी एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसका दिमाग उस तरह से वर्क नहीं करेगा। आपको उसे हर चीज एक साल या 2 साल के बच्चे की तरह ही सिखानी पड़ेगी। एज ए पेरेंट्स सोच के देखें, हम अगर हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे ऊपर क्या बीतता है। नंबर टू, अगर पेरेंट्स के बाद किसी को हम भगवान की तरह देखते हैं, एक टीचर्स को और एक डॉक्टर को। सो पहले भगवान ने तो मुझे ये कह दिया, सो एज ए पेरेंट्स मैं क्या करूंगा? मैं उसको ये ऐसे ट्रीट करूंगा। मेरा 5 साल का 10 साल का बच्चा हो गया, मैं ये कहूंगा नहीं 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 नहीं, ये तो अभी एक छोटे बेबी की तरह है, इसको ट्रीट वैसे। सेकंड सेटबैक आता है जब उनको एजुकेटर्स मिलते हैं एंड दे फोकस 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 ओनली ऑन देयर IQ। आपको पता है इसका IQ 40 है, आपको पता है इसका 60 है, या आपको पता है 70, ये सब चीजें कर लेगा, ये नहीं करेगा। आपको पता है ये बिहेवियर इसका चैलेंज हो रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया बिहेवियर इश्यूज होते क्या है। मुझे नहीं समझ में आया मेरे 24 और 5 इयर्स के कैरियर में। अरे भैया, जब तक कोई उसके पीछे रीजन ही नहीं है तो मैं क्यों रिएक्ट करूंगा? आप उस चीज को जानना नहीं चाहते, बट आपको अपने IP, अपने गोल प्लान, अपने क्वार्टरली प्लान में वो डालना है। दैट्स इट। एक 18 इयर्स के यंग पीपल को आप एक 2 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कभी आपने एज अप्रोप्रिएट डील किया? एंड यही सारी चीजें PTMs में हम पेरेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। सो अगेन, दैट्स वाई मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ, मैं उनको ब्लेम नहीं करता। उनको तो जो हम गाइडेंस दे रहे हैं वो कर रहे हैं। मे बी 0.1% कोई पेरेंट्स हो सकता है, बिकॉज वो अभी तक अपने उस चीज से निकल नहीं पाए। वो हो सकता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ। सो एज ए एजुकेटर सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने हर स्टूडेंट्स, वो जिस भी एज में आ रहा है, उसके साथ एज अप्रोप्रिएट डीलिंग करो। एक 18 ईयर, 20 ईयर या 25 ईयर्स स्टूडेंट्स के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना की कोई जरूरत नहीं। वो एक सर्कल में कलरिंग करेगा, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है। आप उसकी एज के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, वो उसमें से चीजें सीखेगा। एंड अगेन, मैंने मेरे सारे दोस्तों का एक ही नाम रखा हुआ, दो नाम रखे, एक हैप्पी पीपल्स, नंबर टू क्लेवर फॉक्स। हैप्पी पीपल इसलिए बिकॉज दे ऑलवेज स्प्रेड आउट द हैप्पीनेस इन द एनवायरमेंट, एंड वो आज में जीते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में नहीं। क्लेवर फॉक्स इसलिए बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चैम। वो इमीडिएटली समझ जाएंगे कि आप उनको किस तरह से ले रहे हैं। अगर आप उनको छोटे बेबी की तरह ले रहे हैं तो दे बिहेव इन फ्रंट ऑफ यू लाइक ए स्मॉल किड। लेकिन अगर आपने उनके एज के अकॉर्डिंग एज ए फ्रेंड ट्रीट किया तो वो आपके लिए आपके बेस्ट बड़ी। और ये एज ए एजुकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं समझते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताई सर, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे का कौन-सा एज है और किस स्टेज में मेरा बच्चा आ चुका है, कब तक मैं उसको सपोर्ट दे सकता हूँ और कब मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा इंडिविजुअल, और कितना वक़्त है हमारे पास सो सिखाने के लिए। या सो देखिए फैलजा जी, ऐसे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। वो आज भी मुझे गाइडेंस दे देते हैं, तो पेरेंट्स का तो वो रोल है, तो मैं वहां तो कभी ये कहूंगा ही नहीं कि उनको छोड़ना पड़ेगा। बट जो मैं पीछे एक पॉइंट स्किप कर गया, जो आपका क्वेश्चन भी था कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस जॉब या किस एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। तो जैसे मैंने कहा, देखिए सबसे पहले एज ए एजुकेटर मुझे मेरे दोस्त की स्ट्रेंथ देखनी है, कि वो कौन कौन से एरियाज है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है, राइट? एंड वो कौन से एरियाज है जिन पे मुझे वर्क करना है। जबकि हम इसके रिवर्स काम कर रहे होते हैं एज एजुकेटर। आप कहीं भी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप पूछेंगे अच्छा जी XYZ पर्सन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि अगर मैं उसको हायर करूं तो मैं क्यों हायर करूं, तो सबसे पहले बताया जाएगा आपको पता है ही एंड सी इज वेरी गुड इन कंप्यूटर। ओके, वो बहुत अच्छा कंप्यूटर में डिजाइन करती है। फिर नेक्स्ट आएगा, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन ना बस एक दिक्कत है,
उसको ना कोई भी काम करेंगे तो आपको 10 मिनट के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा। एंड आपको पता है कभी कभी ना उनको कोई चीज समझ नहीं आएगा ना तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे, तो आपको हाफ एन आवर के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा। और ना उनका फिक्स पैटर्न है जी, इस टाइम पे उनको ना टीवी देखना होगा। एंड आपको पता है वो ना ज्यादा लोगों का या ज्यादा साउंड नहीं सुन सकते। और आपको पता है उनको सैटरडे संडे तो छुट्टी चाहिए। अब एज ए ओनर किसी कंपनी का जब मैं ये सारी चीजें सुनूंगा तो सबसे पहले मैं अपना हेड स्क्रैच करूंगा कि आपने दो बेस्ट थिंग बताई, स्ट्रेंथ बताई, रेस्ट 10 और 20 आपने वो एरियाज बता दिए जो कंसर्न वाले। देन व्हाई शुड आई हायर, व्हाई शुड आई गिव द अपॉर्चुनिटीज। थर्ड चीज, एज ए एजुकेटर, जब हमारे पास हमारा स्टूडेंट्स है, क्या हमने उसको फ्रॉम द एज ऑफ 13 और 14 से टिल 16 ईयर्स तक की एज में क्या उसको इंट्रोड्यूस करे डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल्स, राइट? अगर हमने वो कराई नहीं है और हम सिर्फ आपका स्टडी की तरफ ही जा रहे हैं, स्टडी की तरफ ही जा रहे हैं, देन अगेन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। एज ए पेरेंट्स अगेन मेरा तो है कि मैं तो चाहूंगा मेरा बच्चा क्योंकि कंप्यूटर खोल लेता है, वो उसमें अपना नाम लिख लेता है, गेम खेल लेता है जी, वो कंप्यूटर स्किल में चला जाए। एंड अगेन मैं पिछले 17 ईयर से जब मैं अपने किसी भी दोस्त को प्लेस करता हूँ, सो मैं सबसे पहले 3 4 चीजें देखता हूँ। नंबर वन, क्या मेरा दोस्त एक ग्रुप में मिनिमम 10 to 12 लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है? नंबर टू, अबाउट हिज और हर सोशल एटिकेट। सोशल एटिकेट डजंट मीन ओनली गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, बिकॉज आपको एक ग्रुप में रहना है तो लॉट्स ऑफ सोशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। नंबर थ्री, मैनेजिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क एथिक्स, एंड आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, जिसके ऊपर ज्यादातर कहा जाता है कि हमारे दोस्तों के लिए डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं। अगर ये Correct. चार पांच या ये चार पांच एरियाज है, इसके अलावा अराउंड हमने अपने 15 16 इस तरह के एरियाज आइडेंटिफाई करे जो एक अडल्ट के लिए प्री एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के ऊपर हमें काम कर रहा है। बिकॉज जो स्पेसिफिक वर्क है वो तो वो अपने उस, चाहे वो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, एमएनसी है, वहां पर जाके मेरा दोस्त सीख लेगा। लेकिन अगर ये बेसिक चीज मेरे दोस्त को नहीं आती है तो कोई भी होटल या कंपनी उनको ये चीज सिखाने के लिए नहीं बैठी। बिकॉज बड़ा सिंपल है, आप अगर एक स्कूल में आए तो आपने पहले टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है, तभी आपकी एंट्री है। अब आप स्कूल में आ जाओ और स्कूल का प्रिंसिपल आपको सिखाए कि एक टीचर होता क्या और टीचर को पढ़ाना कैसा, तो कहेगा मैडम या सर आप प्लीज पहले अपना जेबीटी या बीएड करके आ जाइए सो दैट यू नो हाउ टू टीच द पीपल। सो ये बड़ा क्लियर है, अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती है तो आप मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट में प्लेस नहीं हो। सेकेंड चीज जो हो जाती है, जॉब मैपिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन not only for mainstream employment but same for your supported work center, supported employment वाले मॉडल। बिकॉज मेरा स्किल है कि मैं कोई भी हैवी वर्क जहां पर चीजों को लिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू टू प्लेस, वो मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन मैं उसको यूटिलाइज ना करके मैं उसको टेबल चेयर पे बिठा के वहां पर काम करवा रहा हूँ तो वो पर्सन इरिटेट और बोर होगा, मैं भी बोर होऊंगा। मेरा काम है, मुझे एंजॉय आता है कि लोगों से इंटरेक्ट करना, उनको इस तरह से लेक्चर देना, सेंसिटाइजेशन करना। और मुझे अगर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए चेयर पे बिठा के कंप्यूटर के सामने करते मैं इरिटेट होकर रिजाइन कर दूँ। तो जॉब मैपिंग रहती है, आपका जो एबिलिटी है वो आपके उस पर्टिकुलर टास्क से मैच कर रही है। तो इसको मैं और क्लियर करता हूँ सो दैट की पीपल कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल एक होटल इंडस्ट्री में, उनके रेस्टोरेंट में जो टोटल टास्क है वो है 30, कि कोई भी एक एम्प्लॉय जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है उसको एवरीडे 30 टास्क करने होते हैं उस रेस्टोरेंट में। इट्स इंक्लूडिंग गेस्ट का वेलकम, गेस्ट को एस्कॉर्टिंग करना, गेस्ट को टी कॉफी सर्व करना, गेस्ट का टेबल सेटअप करना, फिर उसको फूड सर्व करना या बुफे काउंटर सेटअप करना, देन क्लियरेंस करना, देन गेस्ट को सी ऑफ करना, ब्ला 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 ब्ला। सो इस तरह से टोटल 30 टास्क है। अब आउट ऑफ 30 टास्क एज ए जॉब कोच, एज ए ट्रेनर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट मैं उन चीजों को पहले खुद एक्सपीरियंस करूँ कि इनको करने में, बिकॉज एक आप देख के कर रहे हैं, एक है आप खुद करके देख रहे हैं। एंड जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगर एक मेरा दोस्त एक ट्रे को लेके उसमें 10 गिलास वाटर जो फिल है उनको लेके अगर उसको रेस्टोरेंट में वॉक करना है और वो भी सिंगल हैंड पकड़ना है तो उसमें कितना पेन होगा या कितना वेट है, राइट? देन नंबर टू, वो कौन से टास्क है जहां मेरे दोस्त को डिफिकल्टीज आ सकती। तो जब मैंने जॉब मैपिंग करी तो मुझे समझ में आया
मेरे दोस्तों को 3-4 टास्क में डिफिकल्टीज आएगी। नंबर वन, आपका एक सिस्टम है जिसमें आपको बिलिंग करना होता है, एंड वहां पर एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कि क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई नो एंड आई विश कि आने वाले टाइम में शायद मेरा कोई दोस्त उसको भी सीख जाए और होगा। नंबर टू, एक्सप्लेनिंग मेन्यू, बिकॉज किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू में मिनिमम 300-400 डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं, एंड उन आइटम्स के अंदर क्या और अदर चीजें होती है वो रिमेम्बर रखना और गेस्ट को एक्सप्लेन करना, जो हमारे बाकी होटल मैनेजमेंट कोर्स करके दोस्त आते हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम। वो एक्सपीरियंस के साथ आप। नंबर थर्ड, अटेंडिंग फोन कॉल्स, बिकॉज जब आप एक गेस्ट का फोन कॉल्स अटेंड कर रहे हो तो 1000 चीज वो आपसे पूछेगा, आपको बताएगा, एंड एज ए एम्प्लॉय इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ होने के बाद आपको उसको रिपीट करना है कि सर दिस इज योर ऑर्डर, जस्ट कंफर्म। सो अगेन मे बी मेरे दोस्त के लिए टफ हो सकता है। सो ये 3 ऐसे टास्क हैं जो मेरे दोस्त के लिए फिजिबल नहीं। सो हमने क्या करा एज ए जॉब कोच, एम्प्लॉयर पार्टनर के साथ बात करी, एंड ये रीजनेबल वर्क एडजस्टमेंट करवाया कि ये 3 टास्क मेरे दोस्त नहीं करेगा, ये 3 टास्क हायर लेवल की टीम करेगी। अब रेस्ट 27 टास्क को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि आउट ऑफ 27 टास्क फर्स्ट 15 टास्क मेरे दोस्त को सीखने और करने पड़ेंगे, इट्स मैंडेटरी। अगर वो ये 15 टास्क नहीं कर सकता है तो वो उस वर्क प्लेस के लिए फिट नहीं है, बिकॉज वो सबसे बेसिक और मिनिमम है। बिल्कुल। तो इस लेवल पे आपको जॉब मैपिंग भी करनी है और अपने कैंडिडेट की एबिलिटी को भी। जब आप उन दोनों को मैच कर दोगे तो मेरा दोस्त कभी भी फेलियर एक्सपीरियंस लेके ड्रॉप आउट नहीं हो, वो सक्सेसफुली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा और एम्प्लॉय। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। एक बहुत ही सिंपल और ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या स्कूल को एक अलग से करियर काउंसलिंग न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के लिए रखना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को कोई ऐसे सेंटर में जा कर के करना चाहिए? बिकॉज स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमें हर तरह का सपोर्ट मिलता है। तो जब हमारे बच्चे वहां से पास करते हैं तो हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए हम करियर काउंसलिंग रखते हैं, तो इन बच्चों के लिए राइट। क्या सेपरेट रखना चाहिए हमें? यस, देखिए मैं इसको 2 तरीके से इसका आंसर देना चाहूंगा। नंबर वन, अगर स्कूल्स अपने पास कोई कैरियर काउंसलर हायर करता है, वेल एंड गुड, परफेक्टली फाइन। बट अगेन कैरियर काउंसलर को बहुत क्लोजली ये सारी चीजें नंबर वन पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक राइट पाथ हमारे पेरेंट्स को गाइड कर सकते। अदरवाइज तो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा है जी, आजकल तो लोग बहुत सेंसिटाइज हो रहे हैं, लोग रेडी हैं। आप इनको आईटी सेक्टर में ले जाइए, आप इनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ले जाइए, या आप एक काम कीजिए इसकी छोटी सी शॉप खुलवा लो। घर तो पेरेंट्स सब कुछ लेंगे, लेकिन किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह का पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे उस कैरियर काउंसलर को पता होगा। सो एट प्रेजेंट मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी स्कूल, वहां पर जहां मैं काम कर रहा हूँ, तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस को। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं कि आप हमें अपॉर्चुनिटीज दीजिए, हम आएंगे आपके यहाँ पर, एंड नॉट ओनली फॉर अवर न्यूरो डाइवर्जेंट या आईडीडी फॉक के लिए, आपके अदर 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज वो भी तो अभी उस फेज में जहां पर उनके पास क्लियरिटी नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है। सो हम, मैं और हमारी टीम हम्म। कॉलेज से हम जाते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं अलोंग विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एंड वी शेयर ऑल द पॉसिबिलिटीज कि हमारे होटल मैनेजमेंट कॉलेज में किस तरह से आप अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह की और अपॉर्चुनिटीज है, एंड सेम फॉर आवर न्यूरो डाइवर्जेंट फोक ऑल्सो, कि आप होटल इंडस्ट्री में कैसे अपना कैरियर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कैसे आप अपना बिल्डअप कर सकते हैं, या और क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए वी आर रेडी। बट यस, जैसे मैंने पहले भी कहा, कैरियर काउंसलर अगर हर स्कूल्स में वेल एंड गुड, बट उनको देन क्लोजली हर चीज को और जो चीजें अपडेटेड हैं, क्या चीजें डिमांड है, वो गाइड करना जरूरी।
एंड बिल्कुल। फिर आपके कनेक्टिविटी उस तरह की हो। अब वो कहते हैं ना, ज्ञान देना या बात करके बताना तो सबसे आसान है, लेकिन उसमें साथ खड़े होकर उसको लंबे समय तक साथ में ले जाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज। और बिल्कुल जब सही तक बात। आपने ऑन फील्ड उस पर काम नहीं किया है, तो शायद आप वो प्रॉपर क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या आपको बिफोर, कहते हैं ना, प्लेस आपको वर्क करना है ड्यूरिंग आपका ट्रेनिंग टाइम पे, जब वो पर्सन उस सेक्टर में प्लेस है वहां क्या काम करना है, एंड आफ्टर जब सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके हायर होता है, उसके बाद क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, चाहे वो एम्प्लॉयर पार्टनर है, चाहे वो पेरेंट्स है, या जॉब कोच है। जब तक कैरियर काउंसलर को इन चीजों का प्रॉपर आइडिया वो नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता वेल सेड सर। हमें खुद एज अ पेरेंट क्या स्टेप्स लेना चाहिए, लाइक क्या आपकी तरफ से टिप्स होगा पेरेंट्स के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को जॉब रेडी कर सकें? है। सो डेफिनेटली देखिए, उसमें दो तीन चीजें। नंबर वन, एज ए पेरेंट सबसे पहले आपको अपने वार्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी के साथ। नंबर वन देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि एज ए पेरेंट्स मैं तो हमेशा चाहूंगा मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने या मेरी बिटिया डॉक्टर इंजीनियर पायलट बने, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चे के पास फ्रीडम छोड़ना पड़ेगा, एंड हमें उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि यस यू कैन, रादर देन हम डिसीजन लेके डिसाइड करके उनके ऊपर चीजें थोपे। क्योंकि मैं अगर हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट या आईडीडी फोक की बात करूं, वो हर चीज कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे पहले हमने उनको उस तरह का एक्सपोजर और ट्रेनिंग दी? अगर हम ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो हमेशा हार्मफुल। तो पेरेंट्स से मेरा जो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, ओवर एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखना। नंबर टू, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो व्हाइट कॉलर जॉब है, लेकिन अगर वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और वो गेस्ट को चीजें सर्व कर रहा है या क्लियरेंस कर रहा है, तो वो मेरे स्टेटस को थोड़ा सा जी दिक्कत दे रहा है। तो अगर ये माइंड सेट है, तो दिक्कत होती है हमारे दोस्तों को प्लेस होने। अगेन, हर पर्सन डॉक्टर नहीं बन सकता, और डॉक्टर एक हार्ड वर्कर जो पर्सन है उसका वर्क नहीं कर सकता। सो मेरे दोस्तों को या किसी भी स्टूडेंट्स को उस वर्क में या उस जॉब में जाना चाहिए जहां वो दिल से इंजॉय करके अपने काम। एंड कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, आपको डिग्निटी और वैल्यू देनी। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा उस पर्टिकुलर वर्क को कितना खुश होके और सक्सेसफुली कर रहा है। वरना आप जितने ज्यादा ट्रायल एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, जितने ज्यादा करते रहेंगे, आप अपने साथ भी एक कहते हैं ना प्ले कर रहे हैं, और अपने वार्ड के साथ। वन मोर रिक्वेस्ट, हमारे जो भी स्टूडेंट वट एवर जिस भी स्ट्रीम से, चाहे वो आपका जिस भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई है चाहे एनआईएस है, वो जब अपना 10th 12th कंप्लीट करते हैं, जो भी उनका परसेंटेज आया है उसे पेपर तक रहने दो। 90% आ गया या 80% आ गया, उसको लेके अगेन प्रेशर जनरेट। बिकॉज ये सारी चीजें हो जाती है जो एज ए पेरेंट्स आपके सपनों को भी तोड़ेगी और मेरे दोस्तों को। बिकॉज हम सबको पता है कि हमारे दोस्तों की सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है उनके जितने भी टास्क हैंड्स ऑन वाले हैं, या जितने भी टास्क रिपीटेटिव वाले हैं असेंबली लाइन में, वो हमारे दोस्तों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड बिल्कुल उसमें हमारे दोस्तों को कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो अगर हमारे पेरेंट्स ने डे वन से उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, एंड हमारे बच्चों को उन्होंने एज अप्रोप्रिएट एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, वट एवर सोसाइटी कहेगी भाड़ में जाओ, सॉरी आई यूज पर्टिकुलर वर्ड, बट अगर आप मेरे वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करो तो आप मेरे कुछ नहीं हो। कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, पेरेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी या रिलेटिव्स के प्रेशर या फ्यू मिथ्स की वजह से अपने बच्चे को उस तरह का अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर नहीं देते। आई बिल्कुल। वो क्या कहेगा, वो कैसा देखेगा, अरे जाने दो यार। जो बैटल आप लड़ रहे हो वो नहीं लड़ रहा है, तो उसके हाय और उफ से आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसे दिक्कत है तो उसे जाने दो ना, आप क्यों जा रहे हो छोड़ के?
तो ये मेरा हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को इस दुनिया का या जिस सिटी शहर में आप रह रहे हैं उसका पूरा एक्सपोजर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक 15 साल के लड़के को हक है कि वो साइड हेयर कट, प्रॉपर स्टाइलिश, फटी हुई जीन्स, लोवेस्ट जीन्स या टी शर्ट्स आज के ट्रेंड के हिसाब से पहन रहा है, तो मेरा दोस्त क्यों नहीं पहन रहा है? क्यों उसे चंपू बना दिया जाता है कि जीरो कट कर दो, टमी से ऊपर तक बेल्ट बांध दो, एंड फिर हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं। सो बनाओ ना उनको पूरा स्टाइलिश। नाउ इट इज, अगर सोशल मीडिया पे जाओगे कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने एफर्ट से अपने बच्चों को काइंड ऑफ रोल मॉडल तक ले गए, मॉडलिंग करवा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास बेस्ट, आप ये कह सकते हैं स्टोरीज है, या बेस्ट आपके पास इस तरह के व्यू चीजें हैं जिनको आप देख के आपको मोटिवेट होना है, रादर देन हाय उफ वो क्या कहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक लेबल लगा हुआ है उसके बियॉन्ड देखना सुनते। ठीक है, वो लेबल लग गया, उसके अकॉर्डिंग डिसेबलिटी सर्टिफिकेट मिल गया, बट अब वहां पर स्टक नहीं होना। उसके आगे देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको लेके चलिए। आपका जैसे आप अपने दूसरे बच्चे को, आपका चाहे छोटा बेटा है, बेटी है, या बड़ा बेटा बेटी है, अगर आपको उसको डांटने का हक है तो मेरे दोस्त को भी डांटने का हक है। सो वहां पर जस्ट बिकॉज ये स्पेशल है तो इसको डांटना नहीं है, दूसरे को डांटना है। जस्ट बिकॉज ये स्पेशल है, बिकॉज वो टैगलाइन लगे तो इसकी सारी डिमांड फुलफिल कीजिए, वो नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं। वो आप करेंगे तो फिर आपका वर्ड हमेशा आपके ऊपर डिपेंड ही रहेगा। एंड वन मोर, जो आपने शुरू में ही कहा था, आप और मैं भी 80% इंडिपेंडेंट है, 20% हम एक दूसरे के ऊपर, चाहे सोसाइटी है चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड है। सो बिल्कुल मे बी मेरा दोस्त हो सकता है वो 30% डिपेंड हो, तो कोई बात नहीं, 70% फिर इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट जितना है उसके ऊपर आपको हाईलाइट करना है, उसके ऊपर आपको वो करके चलना है। डिपेंड कितना है उसे छोड़ो ना। नाउअडेज लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे वो और चीज बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर एजुकेटर ऑल्सो, कि जस्ट सी देयर एबिलिटी एंड वो क्या कर सकते हैं, रादर देन कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत प्यारी प्यारी बात की और बहुत सारी इंसाइटफुल बात की सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपका करना चाहती हूँ। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात जो की उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। पहला, एक्सेप्टेंस। एक पेरेंट को मैंने, मेनी पेरेंट्स आई मस्ट से आर इन डिनायल मोड। वो मत करिए। एक्सेप्ट योर चाइल्ड। देखिए क्या उसका स्ट्रेंथ है, देन उसको लेकर आगे बढ़ाइए। बिकॉज अगर आपने आज सोचा तो कल आपका बच्चा खुली हवा में आजाद होकर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, बल्कि वो किसी को सपोर्ट करने लायक बन जाएगा। डेफिनेट। सर मेरे व्यूअर्स और आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज मुझे लगता है आपकी बातों को सुनकर वो जरूर आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। कोई कांटेक्ट आपका? श्योर श्योर। सो आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सो मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे हूँ, सो बॉबी सुरेंद्र के नाम से है। एंड इसके अलावा आप मेरा जो मोबाइल नंबर है आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, तो 9810391203। आप मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको मैक्सिमम 1 आवर के बीच में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड आप मॉर्निंग टू इवनिंग के बीच में अगर एक मैसेज ड्रॉप करके मुझे कॉल भी कर लेंगे तो परफेक्टली फाइन, दैट्स नॉट एन इशू। सो आई एम अवेलेबल 24/7, नॉट एन इशू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग एंड मुझे एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है। और वो पेरेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और आप लोग हैं जो मुझे डेली कुछ नया सिखा रहे हैं। तो वो मेरे लिए लर्निंग पॉइंट होगा अगर मैक्सिमम व्यूवर्स अगर मुझसे कनेक्ट होते हैं और अगर वो मुझसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो शायद उसी में से मुझे भी कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सारी चीज़ों का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग जाइए और सुरेंद्र सर से मिलिए, बात करिए और अपने बच्चे के स्ट्रेंथ को जानिए और उनके एक्सपर्टीज को यूज करिए अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए। वंस अगेन धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक एक अलग तरह के टॉपिक के साथ विथ अनदर एक्सपर्ट। बाय बाय, टेक केयर।